Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is tradingview.com and this is the Nifty chart. So Nifty is closed around 129 point down today. Sensex is down around 501 point and Bank Nifty down around 308 point. So after a positive candle yesterday, it has formed a negative candle again today. So after 9 days का जो fall था, 9 days के बाद एक bounce आया था, वो bounce यहाँ पे price reject हो गया. So that was I was explaining you on the yesterday's video कि ये bounce है, that doesn't mean कि market long हो गया है. ये सिर्फ profit booking का bounce था. वो bounce के बाद आज वापस वहाँ पे market में selling आया. Still, I have told you yesterday कि day before yesterday, FI have sell worth rupees 4,400 CR. Yesterday, they are also on the selling side around 300 to 400 CR. If we just check on the moneycontrol.com, so let's see on that. What is the activity of FI? This is moneycontrol.com. Under that, you can go to the market section and you can just go to the FIDI activity over here. Just a second. Yeah. Okay. So this is FIDI activity. As on 1st March, you can see over here 424 crore ka selling hai by the FI. DI is the net buyer about 1498 CR, but FI is the net seller. So because of that, yesterday I have told you कि on the yesterday's video, अगर आपने कल का वीडियो चेक किया होगा, तो you can see here कि मैंने आपको बताया था कि ये green candle है, वो positive candle बना है, but this is not the long candle until market 17,500 के ऊपर trade नहीं करता है. So you can see over here on the Excel sheet जो हम trade plan करते हैं, उसमें भी मैंने लिखा आया था कि long above 17,500 is 15-minute positive candle form. मार्केट वॉज लुकिंग के रिवर्सल आ रहा है, बट वो रिवर्सल का सपोर्ट लेवल आना चाहिए कि 17,500 के ऊपर मार्केट आज चलता तो ही मार्केट लॉन्ग था. सो वो हो नहीं पाया और मार्केट आज ओपन हुआ गैप डाउन. सो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यू कैन सी हियर टुडे मॉर्निंग मार्केट ओपन ऑन अ गैप डाउन साइड हियर. ओके, लगभग 40 से 50 पॉइंट का गैप डाउन एंट्री था. And after that, it was fallen badly after making a high of 445.90. So वहां से market went down and throughout the day वो down में ही close हुआ. Now what to do tomorrow? If you can just check the daily chart, overall पहले market का view समझते हैं. So this is the daily chart of the Nifty. तो market मैंने आपको बताया था कि moving average 200 के level पे है. Day before yesterday, it has broken the level and shows us a short sign over there. यहाँ पे selling sign develop किया था on this candle. And after that, again yesterday bounce back came after 9 days of fall. Bounce back came and it has that candle has given the close above moving average 200. Again today, वही moving average को test करके market fallen today and it has broken the day low of yesterday and closed around 17,321. So अभी ये 200 DMA को कंटिन्यूस में टेस्ट कर रहा है. मैंने कल आपको वीडियो में बताया था. If you haven't checked the video yet, after the checking this video, you can go to the StocksBox channel on the YouTube. You will find the yesterday's video here. You can listen to that and just subscribe to our channel and press the bell icon for the continuation update, and you'll get the everyday update about the market around 6 p.m. So over here, if we just check over here, कि market यहाँ पे 200 DMA को continuation में test कर रहा है. Day before yesterday it has broken. Yesterday again it has closed above that. Today again it has closed down below that. But आप अगर यहाँ पे एक चीज mark करोगे here कि तीनों जो कैंडल है वो तीनों कैंडल 200 DMA को टच करके ही बना है. ओके, तीनों कैंडल का आप देखोगे बॉडी है यहाँ पे टच है, इधर हाई क्रॉस किया होगा,
दो में से तो एक है ही। 200 डीएमए के ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, या तो नीचे जाता है तो वापस ऊपर चला जाता है। सो ओवरऑल ये 200 डीएमए को टेस्ट कर रहा है। तो जब तक एक फॉलो अप कैंडल नहीं आएगा, ये कल के वीडियो में भी आपको बोला था कि फॉलो अप कैंडल यहाँ पे आइदर जब 200 डीएमए के ऊपर नहीं आएगा, जिसमें वो जो विग होगा या कैंडल का बॉडी होगा वो 200 डीएमए को टच नहीं होगा, और जिस तरफ कैंडल क्लोज होगा उस तरफ मार्केट का ट्रेंड डेवलप होगा। सो कल अगर वापस अगर गैप अप खुलता है और अगर 200 डीएमए के ऊपर खुलता है और पॉजिटिव कैंडल बनता है, देन यू कैन से कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। और कल अगर फॉलो अप कैंडल कल 200 डीएमए को टच करे बिना नीचे खुलता है और नेगेटिव क्लोजिंग होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट इट कैन से कि नेगेटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है मार्केट में। सो ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट इट ओवर हियर। ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पे मैंने वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। सो कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, टुडे इज द थर्सडे, वीकली एक्सपायरी था। सो लास्ट डे ऑफ द वीक में अगर चेक करोगे कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में था टिल लास्ट वीक। ओके, वो ये वीक में सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर कल मार्केट नेगेटिव में क्लोज हो गया और यही ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल ऑन द मार्केट नेक्स्ट वीक विद द टारगेट ओवर हियर अराउंड 16,900 के आसपास का आपका टारगेट हो जाएगा, रफली अराउंड हियर 16,900 टू 16,700। अगर मैं यहाँ पे आपको एक टारगेट ड्रॉ करके बताता हूँ, so if you can just check here to here and here to here, ये आपका टारगेट है 17,135 is the first target, 16,526 is your second target, but daily chart के हिसाब से it is giving you a target of 16,900 over here. If I'll just remove this, you can see here, यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो 285 के नीचे 16,960 का टारगेट बता रहा है। 16,961 is your टारगेट फॉर द निफ्टी इन केस कल नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है और 200 डीएमए को टच करे बिना ही क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक में यू कैन एक्सपेक्ट दिस एज अ टारगेट। ओवरऑल ये तो हुआ ओवरऑल बातें। अब कल क्या करना है मार्केट में, निफ्टी में क्या ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देख लेते हैं तो आज रिवर्स हुआ है। इफ यू जस्ट चेक द बैंक निफ्टी चार्ट, तो दिस इज द डेली चार्ट फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तकरीबन 38.2% के फिबोनाची लेवल, दैट इज रिट्रेसमेंट लेवल से इट गॉट रिवर्स्ड एंड इट हैज गिवन मी अ लोअर लो क्लोज टुडे। इट हैज गिवन अ लोअर लो क्लोज ऑन द मार्केट, बट यहाँ पे एक गैप था, वो गैप पकड़ के यहाँ पे खड़ा है। तो बैंक निफ्टी में राइट नाउ इट इज अ वेट एंड वॉच साइन। इवन इन निफ्टी में जब तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आएगा, इट नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड नाउ, बिकॉज यहाँ पे एक दिन नेगेटिव बन रहा है, एक दिन पॉजिटिव बन रहा है, एक दिन नेगेटिव बन रहा है। सो फर्स्ट हाफ में तो मार्केट से बाहर ही रहना चाहिए, बट ओवरऑल इफ वी सी ओवर कि कल अगर क्या करना चाहिए, सो आई हैव रिटन इट ओवर हियर ऑन माय ट्रेड प्लान शीट। दिस इज द ट्रेड प्लान शीट जो मैं आपके साथ हमेशा रोज के वीडियोस में लिख रहा हूं। So you can see here on the Nifty, it's a wait and watch. There is no long trend, no short trend. But अगर long और short करना है, जो मैं आपको मेरी 15 मिनट की मास्टर कैंडल पे एंट्री बताता हूं कि पहली कैंडल अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव कैंडल बन तो लॉन्ग करवाता हूं, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता है तो शॉर्ट करवाता हूं। बट राइट नाउ मार्केट ऐसी कंडीशन में नहीं है, so I need to change my strategy a little. So overall अभी कल क्या करते हैं, overall for the novice trader it is a wait and watch sign on the Nifty, Bank Nifty both. But अगर ओवरऑल लेवल क्रॉस करता है, जैसे आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, निफ्टी इज क्लोज्ड अराउंड 17,321 के आसपास। सो इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर कि मार्केट जैसे ही 17,400 के ऊपर कल ट्रेड करना शुरू करेगा तो मैं लॉन्ग कर सकता हूं, बट लॉन्ग करोगे तो आपका टारगेट आएगा बिटवीन 30 टू 40 पॉइंट मैक्स। 30 से 40 पॉइंट दिखा, जस्ट बुक योर प्रॉफिट ऑन दैट। बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना जब तक एक प्रॉपर मार्केट में ट्रेंड नहीं मिलता है। मेरा मानना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, सो ट्रेंड आपका दोस्त है, फ्रेंड है। अगर ट्रेंड बोलता है लॉन्ग है तो लॉन्ग करना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट करना है, सिंपल। ओके, सो ओवरऑल ट्रेंड के साथ रहोगे तो ओवरऑल आपका सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा। ओके, वरना अदरवाइज मार्केट के पीछे ही भागते रहोगे कि मार्केट यहां से टर्न हो रहा है, पीछे ऊपर जा रहा है ऊपर भागो, नीचे जा रहा है नीचे भागो।
दैट इज हाउ आपका ओवरऑल लॉसेस डेवलप होता है मार्केट में। सो ट्रेंड डेवलप करो कि ओवरऑल ट्रेंड नक्की करके आओ कि क्या ट्रेंड है या क्या लेवल है। जैसे राइट नाउ देयर इज नो ट्रेंड ओवर हियर, देयर इज नो ट्रेंड, नो ट्रेड फॉर द नोवाइस ट्रेडर, बट फॉर द प्रोफेशनल ट्रेडर आई एम गिविंग यू द लेवल कि 17,400 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो लॉन्ग करना, 17,250 के नीचे ट्रेड करेगा तो शॉर्ट करना। बट कब करना? जब 15 मिनट का कैंडल आपका 17,400 के ऊपर क्लोज होगा तो लॉन्ग, इधर 17,250 के नीचे क्लोज होगा तो शॉर्ट, विद द 40 पॉइंट 30 टू 40 पॉइंट टारगेट ओनली। बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना फॉर टुमारो। ओके, अदर देन दैट बैंक निफ्टी में 40,050 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो शॉर्ट कर सकते हो, इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते हो। लॉन्ग कब कर पाओगे बैंक निफ्टी में? कि कल का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट जाता है, then only I'm interested for the long on the bank nifty now. So I can expect a short, but 40,050 इसका जो लो के आसपास है वहां जाके अगर ट्रेंड ब्रेक करता है then I'm interested for the short on bank nifty. No wise trader, just stay away from the market, be stock specific because stock specific में आपको ज्यादा मूवमेंट मिल जाएंगे। ओवरऑल स्टॉक वाइज अगर देखते हैं तो आई हैव फाउंड आउट अबाउट 5 स्टॉक्स फॉर यू फॉर टुमारो बिफोर विल डिस्कस यस्टरडेज ट्रेड। So first is Berger Paint, which you can look for long. Okay, so this is Berger Paint over here. Berger Paint में आप चेक करोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसके ऊपर, तो ये जो हाई थे दो स्विंग हाई के ऊपर ये मार्केट ने डे बिफोर यस्टरडे इट हैज गिवन यू अ ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ था बट वो हायर हाई कैंडल था। ओके, इट वाज नॉट द लोअर लो कैंडल, या तो प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके ऊपर ही वो क्लोज हुआ, तो उसको हम बोलते हैं हायर हाई कैंडल। तो वो कैंडल हायर हाई क्लोज होने के हिसाब से आज एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल डेवलप हुआ, तो इसमें अभी मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। फॉर दैट रीजन कल आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो, बट ये हाई क्रॉस करेगा तो लॉन्ग कर सकते हो, सिंस इट इज शोइंग मी अ रिवर्सल साइन कि प्राइस जो नीचे जा रहा था कल के दिन में वो प्राइस रिजेक्ट हो गया आज के दिन में। तो लॉन्ग कब कर सकते हो बर्जर पेंट में? कि अबाउ 585.40, दैट इज ये कैंडल का हाई है, दैट इज ये रेड कैंडल का जो हाई है दैट इज 585.40। अगर 15 मिनट का कैंडल कल आप चेक करना है कि 15 मिनट का कैंडल अगर 585.40 के ऊपर क्लोज हो रहा है और सस्टेन होता है, then you can go for the long on Berger Paint for tomorrow. Then you have Voltas, which is increasing with the volume. Let's see that Voltas. तो स्टॉक नंबर 2 वोल्टास। वोल्टास में यहाँ पे डबल टॉप है, बट यहाँ पे अगर आप बैक साइड में चेक करोगे, रिमूव दिस, यहाँ पे ये टॉप 4 टाइम मारा है, और जब भी हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, और रेजिस्टेंस लेवल पे ये कंटिन्यूएशन में फायर कर रहा है 4 टाइम। अगर 2 बार होता है 3 बार होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चौथी बार होता है तो उसको हम जो रेजिस्टेंस बोलते हैं, या वहां पे डबल टॉप डबल बॉटम या सॉरी डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जो बोलते हैं, वो जोन वीक हो जाता है, तो देयर माइट बी अ चांस ये ब्रेकआउट होगा। देयर इज वन मोर रीजन बिहाइंड दिस ब्रेकआउट एज वेल, और यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम चेक करूंगा ऑन द वोल्टास, तो आप वॉल्यूम चेक करोगे जो लास्ट 4-5 दिन से वॉल्यूम था उससे वॉल्यूम बढ़ गया है। सो वॉल्यूम इज द पेट्रोल इन योर कार, सो दैट्स व्हाई यू कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग ऑन वोल्टास। अगर ये वाला हाई क्रॉस कर गया, जो आज का हाई है वो क्रॉस कर गया, तो वोल्टास में आप कल लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग अबाउट टुडेज हाई दैट इज 925, 925 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, then you can go for the long on Voltas. So Voltas is the trade number 2 which you can look for. Then you have Relaxo Footwear. Remaining 3 stocks are in short. So Relaxo Footwear आप चेक करोगे on the 60-minute chart, आप लास्ट 3 दिन से चेक करोगे तो एक ही रेंज में Relaxo Footwear घूम रहा है। ओके, ओवरऑल इफ यू जस्ट सी ओवर हियर कि आप यहाँ पे Relaxo Footwear का रेंज बनाओगे तो एक रेंज बन गया डाउन रैली का, अप आता है वापस नीचे चला जाता है। So overall, it is a downtrending stock right now. Relaxo एक ही रेंज में है, फ्लैग है, साइड का फ्लैग है, रिवर्स झंडा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसका डंडा और ये इसका फ्लैग, तो रिवर्स झंडा है। तो यहां से अगर ये नीचे गिरेगा
then I'm expecting again a danda over here. Simple. So डे लो अगर ब्रेक हो गया, जो ये लोअर लेवल है, आज इसने ट्राई किया ब्रेक करने का और क्लोज नहीं हो पाए, बट अगर ओवरऑल बॉडी क्लोज देखोगे तो बॉडी क्लोज नीचे की तरफ क्लोज होने की ट्राई हुआ है. So I'm expecting a short on this below 770. इसका क्लोज क्या है आज का? 772. अगर 15 मिनट का कैंडल, इट कैन बी फर्स्ट कैंडल, इट कैन बी टू सेकंड कैंडल, इट कैन बी फिफ्थ कैंडल, 772 के नीचे क्लोज हो गया 15 मिनट का कैंडल, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन रिलैक्सो विद द सेम कैंडल हाई स्टॉप लॉस. ओके, और पिछले वालों में जो मैंने लॉन्ग बताया वो लॉन्ग कैंडल का सेम कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस होगा. So Relaxo is the short candidate for you. Then you have Avanti Fit, which is giving you a breakout. So let's see over here. This is Avanti Fit breakout over here. तो यहाँ पे lower level यहाँ पे break हो गया और close दिया है नीचे की तरफ. So I'm expecting a fall on this Avanti Fit. आप left side में देखोगे तो बड़ा fall यहाँ पे expected है. So look after for the short with the 15-minute candle closing below 362. I'm giving you the level. Why? Because market is looking little choppy. तो पहली कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करवा रहा हूं आपको. तो 15 मिनट चेक करना, 362 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है then you can go for the short on Avanti Fit intraday. And last stock Indigo Paint. आज पेंट के दो स्टॉक है, एक स्टॉक लॉन्ग है, दूसरा Indigo Paints which you can look for short. तो यहाँ पे अगर Indigo Paints ओपन कर लेता हूं, सॉरी Indigo Paints, so sorry. Fine. So this is Indigo Paints. इसमें भी अगर आप 60 मिनट का कैंडल देखोगे बिल्कुल साइडवेज है लास्ट 3 दिन से एकदम चुप बैठा हुआ है ये स्टॉक. तो अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है डाउन की तरफ, बिकॉज ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है राइट नाउ, आप ओवरऑल डेली चार्ट चेक करोगे इसका, तो डेली चार्ट में कंटिन्यूएशन में इट इज मूविंग डाउन. हाउ मेनी डेज यू कैन सी हियर? एक या दो पॉजिटिव छोड़ के रोज ये नीचे ही जा रहा है. आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर दिस स्टॉक फॉर अ शॉर्ट सिंस इट इज मूविंग साइडवेज और एकदम चुप बैठा है. जब स्टॉक एकदम चुप बैठा होता है तो उसमें एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो वंस इट गिव्स यू द ब्रेकआउट. तो इंडिगो पेंट्स में आप शॉर्ट कर सकते हो बिलो 991. ये जो लो बना है, ये तीनों दिन का जो सबसे लोएस्ट है दैट इज 991. उसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया then you can go for the short on Indigo Paints. So this is the 5 stocks which you can look for. Nifty, Bank Nifty, about the level you can do. Other than that, Berger Paint and Voltas long, and remaining you can look for short. Now let's see yesterday's result. Yesterday I have given you about 8 trades. Out of that, Nifty, Bank Nifty जो 17,500 के ऊपर गया नहीं, ना 40,800 के ऊपर Bank Nifty गया, तो दोनों में एंट्री नहीं बनी आज. Other than that, I have given you Bajaj Finance long or short. तो Bajaj Finance में आज short की एंट्री बनी थी. If you can just check on the trade log as well. This is trade log. Bajaj Finance में आज short की एंट्री बनी थी at the level of 6080. Let's see on the chart. Bajaj Finance 6080 के बिलो कैंडल क्लोज हुई, बट मार्केट थ्रू आउट द डे साइडवेज था. एंड बजाज फाइनेंस इज द निफ्टी स्टॉक्स, तो ओवरऑल साइडवेज के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड इन दैट एंड वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 1992 इन दैट. तो इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया आफ्टर शॉर्टिंग ओवर हियर. ये वाली कैंडल ने इसको स्टॉप लॉस निकाल दिया आफ्टर दैट वेंट साइडवेज. तो इसमें 2000 रुपए का लॉस आया ऑन अ कैपिटल ऑन अ रिस्क ऑफ 2000 ओनली, एंड 20,000 का लॉस आया इन द रिस्क ऑफ 20,000. सो इसमें स्टॉप लॉस कैंडल था प्लेन एंड सिंपल. देन यू हैव सेकेंड स्टॉक ओवर हियर. बीपीसीएल में कोई एंट्री नहीं बनी, नेगेटिव कैंडल 314 के नीचे नहीं बना. देन यू हैव ग्रासिम बिफोर आइशन मोटर. लेट्स अंडरस्टैंड ग्रासिम. ग्रासिम में 1598 के ऊपर लॉन्ग बना था, बट उसमें भी आप चेक करोगे तो इट इज हिट अवर स्टॉप लॉस. सो टुडे इज द स्टॉप लॉस डे फॉर अस. After that it went up at the end, but overall जहां एंट्री बनी थी उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, and after that it went down and again went up. So it is fine. So today is the stop loss day of us. 2000 रुपए का लॉस इसमें भी बुक हुआ. So overall 20,000 loss on the risk of 20,000. Third stock was
Eicher Motor, which has given me a long entry over here above 3144. You can check why I have given that in the yesterday's video. Let's check Eicher Motor. So long बना था इसमें around here. उसके बाद it went down but didn't hit our stop loss. Our stop loss was around 3139. फिर उसके बाद ऊपर गया but sustain नहीं कर पाया due to not it's also Nifty stock, so market support नहीं कर पाया. For that reason, our trailing stop loss got triggered in that, and we end up in a profit of 100 rupees only with the risk of 2000 and about 1000 rupees with the risk of 20,000. So overall, आज का दिन क्या रहा? If we can just check, we do the entry. तो आज का दिन है loss में, that is 3891.80. So let's enter it over here. I haven't entered it over here because loss के trade भी दिखाने चाहिए. So I'm showing you all the trade. Profit days होता है या loss होता है. It is also part of a business. तो इसमें हमने trade क्या किया था? We have traded Eicher Motor. We have traded Bajaj Finance. And we have traded, what was the third stock? The third stock is Grasim. So we have traded this 3 stocks today. Other than that, entry nahi bani. Okay, what was the result? Loss. What was the result on the log? Let's see that one more time. 3 trades का loss है minus 3891.80. I'll write it minus 3891.80. So यहाँ पे loss आ गया. On a capital of 3 lakh, 3891 का loss है. On a capital of 30 lakh, we are in the loss of 38,918. So today is the small loss day. Okay, यहाँ पे small loss हुआ. So overall, yesterday's profit was 9327. We are in the medium profit gain, and today we are in the loss of 3891. So overall, first 2 days we are in plus of 5435.40. Let's do a entry 5435.40. So this month 5435.40, and we are on 2nd March today. So yesterday it was 3%. Now we are in plus around 1.81% today. So overall, still we are in plus. Last month we have earned about 18.28%. On the Jan month we have earned about 24.53%. You can check all my videos on the YouTube channel. Accordingly, we have done an entry. Overall, आप check करोगे तो यहाँ पे आप check करोगे तो there are about 243 script we have identified over here. और ओवरऑल उसका रीजन के साथ मैंने आपको ट्रेड दिए थे, बट आउट ऑफ 243 द एग्जीक्यूटेड ट्रेड वाज अराउंड 107. तो 107 ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, क्वालिटी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, एंड यू कैन सी द रिजल्ट. दैट इज about 44.6% we are already in gain. About 40% is the net gain over here within 3 months, not even 3 months, within 2 months. I have started this from 9th of January, and today we are in 2nd of March. So almost 2 months went only, and we are as 44% plus. So intraday trading is not difficult if you do a plan properly. If you're able to identify the trend properly in the market, then you will be able to earn easily from the intraday market. But just you need to follow the rules. And that is what we teach you onto the Mentor Box, guys. So Mentor Box course has been announced, guys. You can see for your detail over here. You can visit stocksbox.in over here. I'll just write it down for you. So you go to www.stocksbox.in and go to the Mentor Box tab over here. You'll find the Mentor Box detail about the courses which we are starting from 1st of April onwards, and you will able to learn a skill how to make a stock market, develop your skill in the stock market. Then you will be having a live trading practice thrice a week. I'll trade in front of you in a live market कि कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको रिस्क अपना मैनेज करना है, कैसे इमोशन कंट्रोल करना है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, that will be taught in the live trading. Then 101 strategies I'll be teaching to you. 101 अलग-अलग टाइप की आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी, जिसमें टेक्निकल की स्ट्रेटजीज होगी, इंट्राडे की होगी, स्विंग की होगी, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज होगी. So each and every type of strategy will be taught. FNO strategies, की स्ट्रेटजीज, करेंसी की स्ट्रेटजीज, कमोडिटी की स्ट्रेटजीज,
all the segment will be covered in this. So 101 trading strategies will be covered, technical analysis will be covered, fundamental analysis will be covered, psychology of trading, as I told you, it will be covered. So this is the main features. You can see over here, this is the course detail, 150 hours of live trading class access, concept on the weekend में ही पढ़ाएंगे तो आपका office hours disturb नहीं होगा, and live trading will be there thrice a week, every Tuesday, Wednesday and Thursday, in the morning time 9 to 11 and in the afternoon time 2:30 to 3:30. मॉर्निंग में आपको ट्रेडिंग करके बताऊंगा, 2:30 में वो सुबह का सेशन का रिव्यू प्लस क्लोजिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, दैट आई ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू. सो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना है. प्लस वी विल हेल्प यू टू डेवलप योर ओन ट्रेडिंग प्लान, own trading strategies. We will help you to build your own trading strategies. Through that you can build your own trading strategies. कैसे बनाना है? So we will personally help you on that. So join the mentor box. See for the detail. You can go to the stocksbox.in and open the mentor box tab. So you'll find all the detail of the course over here. And we are Mr. Vamsi Krishna and myself, and Nikhil Doshi will be taking a training for your full 6 months training. So it is a professional traders program which is starting from 1st April onwards, and fees for the course is 49,999, and we have an early bird offer going on. If you join as soon as possible by just paying the 2,000 advance amount, you can get the 10% off in that, plus 1 year trading call subscription plan with the zero brokerage. तो 1 साल तक आपको up to 12 crore turnover में stocks box में zero brokerage pay करना है. You don't need to pay any brokerage over here. So for more detail, just mark a mail to mentorbox@stocksbox.in. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.